Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, to the Perfect One, to the Supremely Enlightened One. Homage and salutation at the feet of Bhadabandiji, our Guruji, and homage at the feet of our Abbot Guru Bhantiji. And I invoke his blessings on this special occasion, and the most venerable Anand Bhante and the Holy Sangha. Blessings and metta to all the upasakas and upasikas who are gathered here. I would like to give you best wishes on this occasion of Sangren, or Sankin, Viju, or also very importantly on the occasion of the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. This is such a joyful occasion, auspicious occasion, that we all have gathered here from different groups, for different communities, from the south and from the northeast, or from everywhere. But the common root is the Dhamma. We are all connected to the Dhamma. That is the very special thing. And this Dhamma has been brought by this holy Sangha from the Lord Buddha down to the times of Bhadabhante, also Dr. Ambedkar, who was born on this day to revive, to bring back this sublime Dhamma into this land of his origin. This is the day also which marks the beginning of Mahabodhi Society in 1891. If you remember, Mahabodhi was founded in the year 1891 by Anagarika Dhammapala. But the Dhamma Siksha has been started by Bhadabhante. We actually should aspire to be a true Buddhist rather than identifying ourselves with particular group or community. As I say, the common root is the Dhamma, and we are all connected to the Sangha. And we should proudly say that we are Buddhists. We are the follower of Lord Buddha, and Dhamma and Sangha. This is the right understanding. The Buddha said in the Ratana Sutta, Banappa gumhe yathapussitagge gimhana mase patamasmi gimhe tathupamang dhamma varang adesai nibbanagaming paramang hitai. That means, just like in the springtime, at the end of this summer season, we see the myriad of flowers and blossoming in the streets. We see the new leaves and new flowers coming up everywhere. This is also symbolizes an important event, is that the rising of Buddha and his Dhamma is exactly the same. The light of sun and moons were there before, but those lights will not remove our darkness from the mind. Unless the Buddha give his teaching to remove this darkness or defilements and ignorance from the mind, then only we progress in the Dhamma and we go towards Nibbana. So on this occasion, let us discuss about, as a Buddhist, we all have our wishes. Everybody has wishes. But we want to accomplish those wishes. To accomplish certain wishes, we should have a right means and proper means. As a Buddhist, we have right understanding. And this right understanding is actually a great wealth. All of us, we believe in the triple gem. We believe our karma. We believe in the rebirth. We believe in the result of birth and death, result of good karma. We also believe to paying our gratitude to our parents and elders. We believe in the power of the punya,
Therefore, we are all assembled here. So this new occasion is indeed a very important occasion to remind us to establish our Saddha, our Saddha in the Triratna, in the Triple Gem. आपको सब समझ में आता है क्या? मैं हिंदी में इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, हिंदी में बोलो? हिंदी में, okay. So let me just outline this sutta. Buddha, in one of the important discourses, he says, we have wishes to have wealth. Buddha called them as bhoga. Everybody wants to live happily, having wealth and position. Then we also want to have name and fame. Everybody here, you want to be, well known among your colleagues, your friends, and everybody. We want yasa. We also want to, having, good family, having live happily here and now. And we also want our relatives and friends to prosper. We also have a wish to be born in a good destiny, having happy rebirth. But these conditions, these wishes will not accomplished unless and until we have four important factors which are connected with the Dhamma. भगवान बुद्ध एक सूत्र में बताए हैं कि हम सब विश करते हैं, इच्छा करता है कि मुझे भोग मिले, मुझे यशा मिले, नाम मिले, मुझे अच्छा फैमिली मिले, अच्छा फॉलोअर्स मिले, और मैं आगे जाके अच्छी जगह में जन्म लूं, है ना, राइट? लेकिन इसको पाने के लिए चार धम्मों का उपदेश, देशना भगवान बुद्ध दिए। जब तक वो अकम्प्लिश नहीं होता है तब तक ये चीजें नहीं मिलेगा। तो भगवान बुद्ध बोलता है संपदा। संपदा मीन्स संपद, जो अपना पास रहता है, पोजीशंस, राइट? आपका पास जो चीज कीमती है उसको बोलता है पोजीशन। जब वो कीमती चीज परिपूर्ण हो जाता है तो हम लोग संपन्ना बोलते हैं, पाली में संपदा, संपन्ना। तो क्या है वो कंडीशंस which lead us to get all this material prosperity? एंड वो चार चीजों में पहला संपदा जो कि है श्रद्धा संपदा। त्रिरत्न के ऊपर श्रद्धा रखना एक अपने आप ही एक संपत्ति है। जिसके पास ये श्रद्धा है वो बहुत ही धनी आदमी है, वो गरीब नहीं है, क्योंकि आपका पास ट्रिपल जेम है। द हाईएस्ट रेफ्यूज, द हाईएस्ट वेल्थ आपका साथ है, राइट? श्रद्धा हुआ तो हम विहार में आएंगे, श्रद्धा हुआ तो हम सील लेंगे, श्रद्धा आया दिन दान करेंगे। श्रद्धा पुण्य के प्रति श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, देन आप संघ के पास आएंगे, उनको दान करता है। सो श्रद्धा होती तथागत बोधिंग, अनुत्तर सम्मा संबोधि। भगवान बुद्ध का जो सम्यक संबोधि, परिपूर्ण ज्ञानी, जो हमको ये दुख से छुटाने का रास्ता बताया, वो भगवान के प्रति जब श्रद्धा है तो बस आप सही दिशा में हैं, आप राइट अंडरस्टैंडिंग में हैं। देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड सीला संपदा। सील ऐसा चीज है जो कि हमको हमेशा रखने का लायक है। सील एक ऐसा आभूषण है, ऐसा गहना है जो हम हमेशा पहन सकते हैं। कोई आदमी गरीब हो, धनी हो, कोई मायना नहीं रखता है। अगर हम सील रखने के लिए हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, पंचशील रखने के लिए। सो पंचशीला इज ए वे ऑफ लाइफ, अपना जीवन का एक रास्ता है। जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? अच्छा सील पालन करके अच्छा काम करते हैं, बुरा काम को हटाता है। तो कम से कम ये पंचशील अगर जीवन में रखा तो आदमी कभी दुख नहीं जाएगा,
कभी गरीब नहीं होगा। ये पंचशील आपका सही मायने में एक प्रोटेक्शन है। तो हमें हर लोग, जितने भी उपासक उपासिका हैं, तो सील को संभाल कर रखना, बिकॉज ये सील जो है अपना संपत्ति। देन वी हैव दान संपदा, त्याग संपदा। नाउ जनरसिटी, अभी पुण्य करना है। पुण्य करने के लिए तो कुछ चीज चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए, कुछ तरीका चाहिए। अपना लोभ को कम करना है, उसके लिए कुछ तरीका चाहिए। अपने आप को विहार के पास जाना है, राइट। तो दाना जो है ऐसा चीज है, ये आपको आगे ले जाता है। ये दाना को अभ्यास करके आप अपना जीवन में पुण्य कमाई कर सकते हैं। सो दाना ये इतना स्पेशल गुण है जो कि हर बुद्धिस्ट लोग, हम लोग तो प्रैक्टिस करते ही हैं। जैसे हर ओकेजन में हम लोग दान प्रैक्टिस करता ही है, दान प्रैक्टिस करते हैं, और दान का से हम लोग शेयर करते हैं, दान का पुण्यानुमोदन दूसरों से शेयर करते हैं। तो ये अपना एक प्रैक्टिस है। बट दाना यहाँ जो देते हैं, हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ देता है। हम जानते हैं कि इसका कर्म, इसका विपाक क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये दाना का क्या महिमा है, क्या इनका ब्लेसिंग है अपना जीवन में। लेकिन ये तीनों चीज तो मैं बता ही दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर विजडम। जो ज्ञान ऐसा चीज है, अगर वो ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो हम जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वही करके बैठेंगे। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता है तो अपने मन में अज्ञान रहता है, इग्नोरेंस रहता है। जब इग्नोरेंस रहेगा तो आदमी लोभ से काम करता है। जो लोभ से काम करता है तो हमारा अच्छा क्या है हम नहीं जान सकता है। जब मन में लोभ आया तो हम व्हाट वी शुड डू वी डोंट डू, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए वो नेग्लेक्ट करता है। ये भी होना है, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट में जो ये भी मेरा हमारा मन में ये हिंड्रेंस बन जाता है, एक निवारण बन जाता है, हमको रुकावट बनता है पुण्य करने के लिए। देन अगर गुस्सा आया तो आप धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकता। गुस्सा आया तो गलत करके बैठा, जो अच्छा करना चाहिए नहीं किया। उस तरह से मन चंचल है, मन में लेजीनेस है, आलस्य है, मन में संदेह है, हमेशा डाउट है, क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है, क्या ये अच्छा है या ये बुरा है ना। तिरत्ना का प्रति हो, अपना जो काम करता है उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब चीज आता है तो मन में ज्ञान नहीं रहता है, विजडम नहीं रहता है। जब इसको हम समझ गया, अरे ये लोभ द्वेष मोह, ये अविद्या, ये जो है डाउट, ये चीज हमको रुकावट है, हमको रुकाता है पुण्य करने के लिए, हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। देन आपको समझ जाएगा कि मुझे ज्ञान लाना है, मुझे विजडम लाना है। विजडम मतलब यहाँ राइट अंडरस्टैंडिंग लाना है, राइट थॉट्स को डेवलप करना है। देन आप ठीक रास्ते में आ जाएंगे। तो ये ज्ञान का इंपॉर्टेंस यहाँ में इतना ज़्यादा है। अगर ये रहा तो बाकी क्या चीज़ें अपने आप आ जाता है। जो शुरू में मैं बोला, जो 4 कंडीशन, 4 विशेष है, भोगा है, सुखा है, यशा है, या एक अच्छा दीर्घायु रहें। मैं भी आप वो दीर्घा कोई विश करता है कि मैं लंबा आयु रहे, लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है जब आप सील पालन नहीं करता है? क्या ये पॉसिबल है जब आपके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है? क्या ये पॉसिबल होगा आपका पास श्रद्धा नहीं है? ये आप चीज पा सकेंगे? जो पहला कंडीशन जो मैं बोला,
यू विश टू हैव ऑल दोज थिंग, लेकिन ये नहीं करता है, तो आपका विश सिर्फ विश ही रह जाएगा। तो विश को फुलफिल करने के लिए हमको एक्शन में लाना है धम्म को। जो धम्म यहाँ पे इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ, धम्म अपने जीवन में ही लगाना है। जब हम उसको धारण करते हैं, धारयति इति धम्म, जो हम उसको जीवन में धारण करते हैं, श्रद्धा रखता है, अनसेकेबल फेथ। श्रद्धा नहीं कि आज आ गया संक्रांत में और नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आना है मुझे, या श्रद्धा आया आज थोड़ा सील ले लिया और घर गया तो सील नहीं चाहिए। ध्यान करना है, मंदिर में आके बनते अभी मेहता भावना सिखाया, कोई लोग तो मेहता किया भी नहीं होगा, कोई लोग कभी हंसा है लाइफ में, यहाँ आने से पहले हंसा भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ हंसा, यहाँ आके आपको दान करने को मिला, पुण्य करने को मिला, ध्यान करने को मिला। बट दिस शुड नॉट बी ए वन डे शो, एक दिन दिखाया, घर में गया, भूल गया, देन तो आपका विशेष जो है या आपको जो धर्म में आगे बढ़ना है वो परिपूर्ण नहीं होगा। धर्म में आगे बढ़ने के लिए हमको रोज ये चीजें को अभ्यास करना है। जैसे मैं बोला, विजडम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। तो ये चार चीज को संभाल के रखना। जब ये चार चीजों को आपने जैसे अपना धन संपत्ति को रखता है ना संभाल के, उस तरह से हम अपना इस धन को भी अपने साथ रहना है। ऑल दिस वेल्थ, दो दुनिया का वेल्थ चले जाने से भी एक ना एक दिन जाएगा, नहीं जाएगा। जो आपका वेल्थ है, कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपको खोना पड़ा, या आप ऑनलाइन में फंस गया, आजकल वो सब चीज़ चलता है, या फिर आपने एनी वे इन एनी मैनर खो दिया। बट ये जो बाहर का वेल्थ है वो तो जाने वाला ही है, देयर इज नो सेफ्टी और गारंटी। बट अंदर का जो धन है वो तो कोई नहीं ले सकता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अजेय अनुगामी को, दैट मीन्स इनविंसिबल, कोई उसको छीन के नहीं ले सकता है। एंड दिस फॉलोज वेर एवर यू गो, वेर एवर यू गो। अभी श्रद्धा है, हमेशा श्रद्धा है आपका पास, सील है, सील आपने रखा है, यू आर कॉन्फिडेंट, जहां जाएंगे वहां सील है, आपका सील आपका प्रोटेक्शन है, सील आपका रेफ्यूज है, सील आपका धम्म का ऑफरिंग्स है, राइट। देन दाना का पारमी से, दाना का पुण्य जो किया, अभी दान दिया ऐसा नहीं कि हो गया, वो दान का पुण्य आपके साथ हमेशा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में है या कोई सिचुएशन में है, आपको याद आया कि मैंने पुण्य किया, बिहार में जाके संघ को दान दिया, दैट मोमेंट वो जो पुण्य किया, दैट पुण्य जो है आपको याद आएगा, वो पुण्य आपको आनंद देता है ना। भगवान बुद्ध बोला ना, जब जब पुण्य को करता है तब आनंदित होता है, प्रमोदित होता है, जब जब उसको याद करता है उसमें खुशी आता है। उस तरह से गलत काम को भी जब करता है क्या आता है, दुख आता है, उसको दुख आता है। तो ये चीज को आज ए बुद्धिस्ट, आज का इस वेरी एक नया साल हमारे लिए है, इस ओकेजन में इसको बारे में कंटेम्पलेट करना, हमेशा राइट व्यू के साथ रहना। राइट व्यू क्या है, कर्म को मानता है हम लोग, जैसे मैं पहले बोला, राइट व्यू इज द लीडिंग फैक्टर। मिथ्या दृष्टि को छोड़ना, राइट व्यू को बढ़ाना है। जब राइट व्यू को बढ़ाया, इसलिए नोबल एट फोल्ड पाथ में पहले आता है राइट व्यू। बस क्या आता है, राइट व्यू। कभी नोबल एट फोल्ड आता है सम्मा दिट्ठी, किसी ने सुना कि नहीं सुना है, सम्मा दिट्ठी, सम्मा, उसके बाद क्या आता है, देखो ये भूल गया, इसको भी याद रखना, याद नहीं रखना है, जीवन में देखना वो सम्मा दिट्ठी कैसे कम करता है, मिथ्या दिट्ठी
कैसे दुख लाता है, भय लाता है। मिथ्यादिथि में फंस जाता है ना लोग, तो क्या क्या करता है, गलत काम करता है। दुनिया में जो गड़बड़ होता है ना, किस लिए होता है? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग व्यू। तो हम लोग बुद्धिस्ट, हमारा धम्मा इतना अच्छा है, भगवान बुद्ध हमको सब कुछ बता के दिए है ना। तो वो धम्मा को जब हम पालन किया, सिर्फ इस लाइफ में नहीं, जन्म जन्म से हम सुख से रहेंगे। और फिर हमको ये मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, धम्म में आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो इसके साथ साथ आपको मेत्ता भी अभ्यास करना है। बहुत समय में क्या होता है, हम इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हम दूसरों के प्रति कंसर्न नहीं रखता है। फैमिली में हमेशा मेत्ता काया कम्म, मेत्ता वाची कम्म, मेत्ता मनो कम्म। फैमिली या फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सबको मैत्री भाव रखना। मैत्री भाव का मतलब खुशी सुख से रहना परिवार के अंदर में। जब वो परिवार के अंदर में खुश नहीं है, बाहर में खुश है क्या? बाहर में आएगा? नहीं आएगा। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योर फ्रेंड्स, और अपना माता पिता से जब बात करते हैं तो मैत्री से बात करो। जब हम कुछ काम करते हैं, तुम्हारा काम ऐसा नहीं कि वो काम को तुम बड़ा स्लो से करेगा, नहीं, वो काम ऐसा करना जिसमें दूसरों को दुख नहीं पहुंचना है, दूसरे का ऊपर कंसर्न रख के करना है हमेशा, एवरी एक्शंस। देन वो काम मेत्ता बन जाता है। और सुबह सुबह उठ के मेत्ता का विश करना। जब हम विश करते हैं, दैट विश बिकम्स ए पावर, मे दिस पर्सन बी हैप्पी, मे माई फैमिली मेंबर्स बी हैप्पी। देन आप ऐसा कुछ नहीं करेगा कि दुख आ जाए उनको, तुमको मालूम है कि ऐसा दुख आएगा। ठीक, जब सुख कामना करते हैं तो हमारा कर्म भी उस तरह से ट्यून होता है, मन हमको आगे ले जाता है। तो ये मेत्ता काया वाची मनो कम्म हमेशा प्रैक्टिस करना। ऐसा ना करें कि दूसरों आप लोगों को ब्लेम करें, दूसरा आपका गलती पकड़े, हैं? और सोसाइटी में ऐसा दिखता है, हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, हम दूसरों को डाल देते हैं, और इतना सेल्फिश मैं बोल के होता है ना। सो इस ओकेजन में जो बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी है और नया साल है और नया दिन है हमारा सांक्रियन और बीजू का उस उत्सव में आप लोग सब आया यहाँ पे इसको मनाने के लिए। तो हम लोग का ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो है धम्मा सेलिब्रेशन है, ये जो है धम्मा सेलिब्रेशन है। इसमें एक यूनिक वे है, हम आपका कल्चर को भी बचा के रखना, और आप लोग रखा भी है, इस कल्चर को संभाल के रखा है। जैसे नया साल में मंदिर में आना, सो आवर कल्चर रूट्स ऑल्सो गोज टू संघा, बुद्धा धम्मा संघा के साथ हमको आगे बढ़ना है। सो आज यही विश मैं करता हूँ कि आप लोगों का ये नया साल सुखदायक हो, मंगलदायक हो। आप जो भी करता है ना, उसको ज्ञान से कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, और सही मायने में एक प्राउड बुद्धिस्ट बनने के लिए कोशिश करेंगे। जितना हो सके जीवन में गलत काम को हटाएंगे, अच्छा काम को करेंगे। अच्छा काम के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। दान करना अच्छा है, शील फलन करना अच्छा है, समय समय पे ध्यान करना वो अच्छा है, धम्म को सुनना ये एक अच्छा है। धम्म सुनने के लिए खुशी आता है कि नहीं आता है? ना वो गाना सुनने से खुशी मिलता है, लोगों का व्यू डिपेंड्स। किसी को सॉन्ग सुनने से मज़ा आता है क्योंकि वो तो कुछ दुनिया में एक इमोशंस को ले लेता है, लेकिन हम लोगों को धम्म के साथ जुड़ना है। जब हम नया विजडम के बारे में सुनता है, ज्ञान के बारे में सुनता है, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में कितना स्टेजेस है, हाँ? या ऐसा शील पालन करने से क्या बेनिफिट्स है, तो उसमें खुशी लेता है। तो वो सुनने के लिए मन होना है, तब आप तड़प के जो है इधर आना है बिहार में, अरे मुझे धम्म सुनना है। जाके बहुत सारा हमारा डिवोटीज लोग
इतना रेगुलर है, बिकॉज दे नो द टेस्ट ऑफ धम्मा, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे तो संभव भला पर नहीं है, दुनिया में तो इतना सारे बातें हैं, आप रुको बोलने से रुकेगा नहीं, ना नॉन स्टॉप चलते रहता है। क्या बात चलता है बाहर में आपको पता है? यहाँ धम्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, पुण्य के बारे में, अपने जीवन को अच्छा करने के बारे में, सुख पाने के बारे में बताते हैं। सो आई विश ए वेरी हैप्पी संक्रांति वंस अगेन। हैप्पी बीजू। सारा साउथ ईस्ट एशिया में इसको मनाया जाता है। ये चीज़ें हमारे लिए नया साल है। इस नया साल में मे यू ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग, मे यू ग्रो इन धम्मा, मे द ट्रिपल जेम्स गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ। सो सबका मंगल कामना करते हुए ये धम्म उपदेश यहाँ पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।